Okay, students. So let us start. 5 minutes revision of last lecture, yesterday's lecture. What we have discussed yesterday, the first discussion was difference between agreement and contract. Am I right? Difference between agreement and contract. And I said for a CA student, it is very important question, 4 marks. Okay. And for CA students, they have to clear all the concepts for MCQs, of course. Now, what was the first point? First point, the basis of difference was the meaning. Very simple. First, you have to define agreement, then you have to define contract. What is an agreement? Every promise or set of promises forming consideration for each other. Very simple definition, meaning. And contract, वो तो मुझे लगता है कि अभी almost by heart हो गया है. An agreement enforceable by law. So that is the first basis of difference between agreement and contract. Second point we have discussed was the scope. What is the scope of agreement? It has a wider scope than contract. Okay, try to understand this once again. When I said it has a wider scope, that means an agreement consists of not only legal obligations but also social obligations. We have discussed that yesterday. Legal obligations as well as social obligations. But as far as contract is concerned, it is narrow base. It has narrow base as compared to agreement because it consists of only legal obligations. Only legal obligations. So it is wider concept. It is narrow concept. And third point of distinction was legal obligation. Of course, the word legal obligation. And as I said, an agreement, it is not necessary that every agreement will create legal obligation. It is not necessary. But when I talk about contract का मेन थीम ही यही है कि कॉन्ट्रैक्ट में जब दो लोग एग्रीमेंट करते हैं तो इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. बट इन एन एग्रीमेंट it is not necessary that two persons are agreeing with each other for creating any legal obligation. It can be social obligation also, domestic obligation also. Okay. And the last point was, that was very a famous statement, every contract is an agreement, but it is not necessary that every agreement will be a contract. Very important statement. So that was the important discussion. And then we started with what are the essential elements of valid contract. And as far as essential elements of valid contract is concerned, we have to refer section 10 of Indian Contract Act 1872. But सेक्शन 10 में जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, कल हमने उसका डिस्कशन नहीं किया बच्चों. उसके अलावा हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए या कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ है. They are also essential elements of valid contract, legal contract, but they are not defined under section 10. वो सेक्शन 10 से बाहर है, but they are essential elements. They are also essential elements. You can say that. So yesterday, in last lecture, what were those points that we have discussed? That to make a contract, valid contract, at least two parties are required at least. So that is the minimum criteria. Okay, जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा था बच्चों, OCM वगैरह में, SY जैसे में, कि कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए. बस वही है. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बनाना ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में. तो मिनिमम क्राइटेरिया इज 2. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. कॉन्ट्रैक्ट भी वही है, कम से कम 2 पार्टी चाहिए. ओके, सिर्फ 2 पार्टी चाहिए, ये ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा. ओके, सो
इसके बाद बच्चों फिर हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रहे हैं उनका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। मैंने कल एक स्टेटमेंट भी बताया था कि ज्यादातर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्री एजम्पशन होता है कि parties are having the intention to create legal obligation. Is that okay? And the third point I have discussed last lecture, that was the other formality, जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। ज्यादातर लॉ अभी यही चाहता है कि ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट जो करे, एग्रीमेंट जो करे, वो राइटिंग में करे। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो आपके एग्रीमेंट के, उसको राइटिंग में आप, जैसे कि पार्टनरशिप डीड के बारे में कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। So these are the essential elements we are discussing which are apart from section 10. We have not discussed section 10 right now, उसके अलावा, but they are essential elements. And the next point, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, the next point जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देखेंगे जरा, कल के लेक्चर का 2 या 3 पॉइंट हमने कवर किया था। ओके, तब तक कुछ बच्चे चाहिए तो डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, कुछ कोई कंफ्यूजन से कल मैंने टाइम दिया था आपको। एनीवे, सो I think two parties. You can see the screen now. We have discussed the point two parties. We have discussed the point parties must intend to create legal obligation. Intend means intention होना चाहिए उनका legal obligation create करने का. Okay. And next तीसरा, other formalities to be complied with in certain cases, not all cases, in certain cases. ओके, उसमें मैंने कहा था कि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर वैलिडिटी देनी है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी इन राइटिंग। एंड दैट वाज द discussion up to last lecture. Now let's continue with the next point, fourth point. You can see on the screen essential elements of valid contract में ये भी कहा गया है कि आप जो एग्रीमेंट करते हैं, दो लोग जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं, प्रपोजल देते हैं, एक व्यक्ति प्रपोजल देगा, ऑफर देगा, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो एकदम सर्टन होने चाहिए, सर्टनटी होनी चाहिए उसमें, बराबर है, वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब अनसर्टन, अपोजिट ऑफ सर्टन, अनसर्टन, बराबर है, जिससे एकदम क्लियर कट मीनिंग निकले। जैसे कि बच्चों, मैं 2 मिनट के लिए रिकॉल करवाना चाहूंगा, आपने SYJC में बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पढ़ा था? यस। उसका जब आपने फॉर्मेट बनाया था, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा, सही है? उसमें हम क्या शब्द लिखा करते थे? अगर कुछ याद होगा तो देखो, आपने हाल ही में एग्जाम दिया। फॉर एग्जाम्पल, 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो जब आप ये लिखते थे तो आप देखो ना, कितनी सर्टन बातें थी। ड्रॉवर सर्टन व्यक्ति था, ड्रॉई सर्टन व्यक्ति था, अमाउंट का लेन देन सर्टन है, कितने वक्त में पे करना है ये सर्टन है, कैसे पे करना है, किसे पे करना है, इसमें सर्टनटी है। अगर मैं वही बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कहूं, उसमें लिख दूं 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी द अमाउंट वॉट एवर यू लाइक फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, वॉट एवर यू लाइक फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, तो बच्चों इसमें अमाउंट सर्टन है क्या? नहीं। कल को अगर आपने मुझे पे नहीं किया एंड ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर कोर्ट में लेके गया, तो कोर्ट क्या करेगा? वो फाड़ के मेरे मुंह पे मार देगा।
बोलेगा कि इसमें अमाउंट सर्टन नहीं है भैया। सो आप जब भी कोई एग्रीमेंट करते हो तो एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशंस, चाहे अमाउंट को लेकर हो, क्वांटिटी को लेकर हो, पर्सन को लेकर हो, प्लेस को लेकर हो, सर्टन होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। आप जरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या लिखा है देखो, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, इट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, आप में से किसी के साथ मैं एग्रीमेंट करूं, फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं जैसे नाम पढ़ पा रहा हूँ रितेश, रितेश पांडे। मान लो रितेश पांडे एक मेजर है, माइनर नहीं है, 18 साल के ऊपर के हैं। एंड मैं रितेश के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड रितेश को मैं क्या कह रहा हूँ कि रितेश, आप मेरे ऑफिस में आकर 8 घंटे काम कीजिए, मैं 8 घंटे काम करने का मंथ के एंड में सैलरी दूंगा, बरोबर है। एंड वो सैलरी मेरे मन में जितना आएगा उतना दूंगा। तो जरा आंसर लिखिए, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्चों? आंसर सबके सही है, वेरी गुड। क्यों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी का देना है वो क्लियर नहीं है। अरे 1 महीना रितेश काम करेगा तो 1 महीने की मैं उसको सैलरी जितना मेरे मन में आएगा उतना दूंगा, ये क्या बात हुई बाबा? ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि रितेश 1 महीने से मेरे यहाँ जॉब करेगा तो मैं उसको 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, तो ये सर्टन एग्रीमेंट हो गया, सर्टन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम सर्टन है, अनसर्टनिटी की कोई बात ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है। सही है। एक और एग्जांपल सुन के रखो, आगे काम आएगा आपको। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं बच्चों, प्रपोजल ऑफर, विल यू परचेस माय कार फॉर रुपीज 1 लाख। मान लीजिए एग्जाम्पल है बच्चों, डोंट टेक इट सीरियसली। मेरे पास कार है, अभी सेकंड हैंड हो गई है, और मैं कहूं कि मैं कार मेरे से आप खरीदो, मैंने कार बेचने का आपको ऑफर दिया है ना, आपने कहा हाँ सर, यस, हम आपका कार खरीदने को तैयार हैं। आपने देखो मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो बच्चों, लेकिन आपने क्या कहा? हाँ सर, हम आपकी कार खरीदने को तैयार हैं 1 लाख रुपए में, लेकिन पहले बड़े भैया को पूछ लूं, पापा को पूछ लूं। ये जो आपने ऐड कर दिया, पहले बड़े भैया को पूछ लूं, पापा को पूछ लूं, इसका मतलब अभी जो हमारे बीच में एग्रीमेंट है वो सर्टन नहीं है, वो फाइनल नहीं है। क्योंकि आपने कुछ साथ में कुछ देखो ना कंडीशन जैसे ऐड कर दिया, यानी आप पापा को पूछेंगे, बड़े भाई को पूछेंगे, तब जाके आप कुछ अपना जवाब देंगे, तब तक इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, ये मैं नहीं मान सकता। इसलिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी दो व्यक्ति लोग एग्रीमेंट करेंगे, वो एग्रीमेंट सर्टन होना चाहिए एंड नॉट वेग और इनडिफिनिट, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट। पापा को पूछ के बताऊंगा, ये कंप्लीट नहीं है, ये इनडेफिनिट है, ये इनकम्प्लीट है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपके बुक ने क्या एग्जांपल दिया है। ए एग्रीज टू सेल टू बी, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। बच्चों इस एग्जांपल में एकदम क्लियर है कि ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर, बरोबर है, एम आई राइट? एंड बोथ आर entering an agreement to sell and purchase oil, 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब बच्चों इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये ऑफर एग्रीमेंट जो भी आप बोलिए, क्या ये सर्टन है? तो आंसर ये है कि यहाँ जो ऑयल की बात हो रही है, ये कौन से ऑयल की बात की जा रही है?
ए पढ़ाई के लिए कौन मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। ए कौन से ऑयल को बेचने का एग्रीमेंट कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि इफ ए इज डीलिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल, कोकोनट ऑयल में भी डील करता है, रिफाइंड ऑयल में भी डील करता है, केरोसिन भी बेचता है, और भी कई तरह के ऑयल्स को सेल करता है। अगर ऐसा ए डिफरेंट ऑयल्स बेचता है एंड वो अगर ऐसा एग्रीमेंट करता है, तो ये क्लियर नहीं ना कि कौन सा ऑयल बेचने का वो एग्रीमेंट कर रहा है। ऑयल को लेकर अनसर्टनिटी है। देखो आंसर लिखा है, देयर इज नथिंग सर्टन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। तो बच्चों इस एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि इस एग्रीमेंट में which type of oil Mr. A intends to sell to B, this is not clear. बट यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो कि अभी आपके स्क्रीन पे नहीं है, उसका आंसर आप मुझे देंगे। ओके, उसका आंसर सभी लोग लिखेंगे। आप एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए जो है, ही इज अ डीलर इन ऑयल एंड ही इज डीलर ऑफ ओनली कोकोनट ऑयल। He deals only in one type of oil and that is coconut oil, and ये जग जाहिर है, ये सबको मालूम है कि मिस्टर ए इज वेरी फेमस इन सेलिंग ओनली वन टाइप ऑफ ऑयल, दैट इज कोकोनट ऑयल। अब आप बताएंगे अगर ए एग्री करता है बी के साथ 100 टन ऑफ ऑयल बेचने का, तो ये एग्रीमेंट सर्टन है, वैलिड माना जाएगा कि अनसर्टन माना जाएगा? प्लीज आंसर। वाह, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। बच्चा भी आपका आंसर देखो कितना अच्छे से आ गया कि सर्टन है सर, वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों वैलिड हो गया? आप समझ गए ना मेरा एग्जाम्पल, समझ गया ना? जब यहाँ पर हमको पता है कि मिस्टर ए डीलिंग इन ओनली वन टाइप ऑफ ऑयल, तो फिर इसमें कोई एम्बिग्यूटी रही नहीं ना कि और किसी ऑयल की बात करे वो। When he is dealing only in coconut oil, that means he is having intention to sell only coconut oil. वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ऑलमोस्ट जितने लोगों ने फिलहाल आंसर दिया है मेरे सामने, सभी का आंसर बहुत सही है। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, डाउट होगा तो आप टाइप करिएगा बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट स्क्रीन पर आप देख रहे हो। ओके, कुछ दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पर अच्छे से? एक दो जन आंसर दे दीजिए। ओके ओम, यस, ठीक है, ठीक। धवल ने भी यस बोला है। बच्चों नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट अगर हम डिस्कस करें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, ओके, तो हेडिंग से आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। दो लोगों ने जो आपस में एग्रीमेंट किया है, क्या वो एग्रीमेंट परफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसे भी चेक करना चाहिए। सर क्या बोले, नहीं समझा? समझाता हूं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। ओके, मैंने
मयूर सर को ऑफर दिया, मैंने उनको एक प्रपोजल दिया कि मयूर सर, आज रात को आप आकाश में कितने तारे हैं, स्टार्स काउंट करके बताइए। अगर आपने काउंट करके बता दिया नंबर तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। एग्जाम्पल है बच्चों, डोंट टेक इट। बच्चों ये क्या है? एंड मयूर सर ने एक्सेप्ट कर लिया मेरा। गिरी सर, मैं आज तारे स्टार्स काउंट करके बताऊंगा आप। मैंने प्रपोजल दिया स्टार्स काउंट करने का, मयूर सर ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया। बच्चों हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन क्या ये एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस पॉसिबल है? आंसर लिखिए। पॉसिबल है? नहीं। वेरी गुड। नो, इम्पॉसिबल। इसका मतलब गिरीश एंड मयूर में जो एग्रीमेंट हुआ है स्टार्स काउंट करने का, बच्चों दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे केस में कोर्ट ये ऐसे एग्रीमेंट हॉनर नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लॉ के नजरों में इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। परफॉर्मेंस जब पॉसिबल ही नहीं है तो एग्रीमेंट आप एनफोर्स नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आर यू गेटिंग दिस? यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एसेंशियल एलिमेंट कि दो लोग जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखो कि आप एग्रीमेंट जिस परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो, इज इट पॉसिबल? क्या वो परफॉर्मेंस पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में? आंसर यस, तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो ना। आंसर नो, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर सर इसको हम क्या बोलेंगे? वो हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों पढ़ लेंगे, बट ये फिलहाल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके आपकी बुक ने देखो और एक एग्जांपल दिया है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल of performance. First of all, capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. इसका मतलब ये एग्रीमेंट जरूर है लेकिन ये इन्फोर्स नहीं हो सकता, देयरफॉर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसका कारण ये है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं बच्चों तो आप जरा उसके बारे में बताएंगे मुझे। ओके ठीक ठाक अगर चल रहा है, समझ में आ रहा है तो ओके। इफ आई एम फास्ट प्लीज टेल मी। ओके सो बच्चों सी द एग्जांपल, प्लीज रीड द एग्जांपल। ए एग्रीज विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ओह जादूगर। ए एग्रीज विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। दिस एग्रीमेंट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड। ये एग्रीमेंट हमारे कोर्ट ऑफ इंडियन कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज डिस्कवरिंग ट्रेजर बाय मैजिक इज अ इम्पॉसिबल एक्ट। बच्चों डू यू एग्री विद दिस? एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। शब्दों पे ध्यान दो। अब आपको ऐसे शब्दों की आदत पड़ जानी चाहिए। बीइंग सीए स्टूडेंट, बीइंग सीए स्टूडेंट, आप स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, एक्सपर्ट्स लोग होंगे जिनको लॉ मालूम होता है। पब्लिक आपके पास आएगी, बरोबर है, आप लॉ के बारे में उनको समझाओगे, प्रोफेशनल फील होगे। कॉमन मैन को लॉ की भाषा नहीं समझती, इसलिए वो सीए एंड सीएस की मदद लेते हैं, एडवोकेट की मदद लेते हैं। तो ये सब भाषा, लैंग्वेज की आदत अभी आपको पड़ जानी चाहिए। ओके सो दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड। ये इम्पॉसिबल एक्ट है। ओके यस। So these were the 5 points which we treated as essential elements of valid contract, but they are not under section 10. Try to understand बच्चों, ये section 10 के अलावा, section 10 के अलावा जो है
उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एंड अब चेक द राइट हैंड साइड ना, स्क्रीन का राइट हैंड साइड देखो। Essential elements of valid contract, right hand side, not given by section 10 but are also considered as essential. What was the first point? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अराइज करने के लिए कम से कम 2 पार्टी चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसे भी पूरा करना चाहिए। सर्टन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पर एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, अगर बोला है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, फिर ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा। दो लोग जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसका मीनिंग सर्टन होना चाहिए। कहीं पर भी असर्टनिटी मिली तो हमारा इंडियन कोर्ट आपके बनाए गए एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करेगा। एंड सबसे बड़ी बात, दो लोग मिलकर जो एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट में जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस को लेकर अगर आप कोई एग्रीमेंट करोगे तो बच्चों वो ऑनर नहीं किए जाएंगे इंडियन कोर्ट्स में। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों अभी एक एग्जांपल आप सुनेंगे एंड मुझे आंसर बताएंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये दो आंसर्स आप दोनों में से कोई एक आंसर देंगे। ओके, ए ने बी के साथ, ए ने बी को क्या कहा, ऑफर देखो कि आप मुझे 50 लाख रुपए दीजिए, गिव मी 50 lakhs रुपीज, एंड उसके बदले इन कंसिडरेशन मैं आपकी मरी हुई बीवी को जिंदा कर दूंगा। एक मिनट, ओके, वेरी गुड, आई थिंक यू अंडरस्टूड द रीजन। मैं रीजन वापस नहीं बोलता हूँ। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये डिस्कशन मैं बहुत ही स्लो डिस्कशन में जा रहा हूँ क्योंकि इसका एक एक पॉइंट जितना क्लियर होगा बच्चों, आने वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो यू हैव टू मैनेज द लैंग्वेज। ओके, सो what are the essential elements of valid contract as given by section 10 of Indian Contract Act 1872? Very important। and उसमें आप देख रहे हो सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट, फ्री कंसर्न, देखो ना नए नए शब्द है, कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, नया शब्द है आपके लिए। बच्चे ये जो आप 5 to 6 पॉइंट्स देख रहे हैं, these are actually individual topics which we are going to discuss in our further lectures. These are individual topics you can say under Indian Contract Act। Agreement के ऊपर पूरा एक topic है। You know that what is agreement? What is agreement? Don't define। Mathematics में क्या पढ़ाया था मैंने mathematics के terms में? What is agreement? Proposal plus acceptance। Proposal plus acceptance, that is agreement। So ये word आपको familiar है, बरोबर है। आप किसी को ऑफर देंगे, यस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ओ प्लस ए, शॉर्टकट, वेरी गुड। ओके, सो यू आर फैमिलियर विद द टर्म एग्रीमेंट। अब उसमें हम वापस डिटेल में नहीं जाएंगे, जब वो टॉपिक आएगा ऑफर एक्सेप्टेंस को डिटेल्स में पढ़ने का, उनको लेकर ऑफर कैसे होना चाहिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, वो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन फर्दर लेक्चर्स। अभी जस्ट शॉर्टकट में मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें आगे बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं। फ्री कंसर्न, अभी इसे समझ लो तो जब वो टॉपिक शुरू होगा तो दैट विल बी इजी फॉर यू। फ्री कंसर्न में फिलहाल
कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड कंसर्न. फ्री वर्ड बाजू में रख दो फिलहाल. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड कंसर्न. कंसर्न. बरोबर है. अब ये कंसर्न क्या है? एग्रीमेंट हो गया, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस किया, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन हमारे बीच में कंसंट नहीं है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता. आप कहेंगे सर नहीं समझा कंसंट. कंसंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्री वर्ड अभी मत पढ़ो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड कंसंट. कंसंट मतलब when two persons are thinking in same way and in same sense, we say that both the parties are in consent with each other. जब दो लोग एक ही जैसा सोचते हैं, गुड्स बेचने वाला समझ रहा है कि वो क्या बेच रहा है, एंड खरीदने वाला समझ रहा है कि वो क्या खरीद रहा है. आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स हम जिसको हम कहते हैं. आगे चल के एक लैटिन टर्म आएगा कंसेंसस एड इडम. जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कंसर्न का तब डिटेल में आ जाएगा. अभी फिलहाल शॉर्टकट में मैं आइडिया दे रहा हूँ कि when two persons are thinking in the same way and in the same sense, हम बोलते हैं कि उनमें कंसंट है. ओके. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी से समझ लो एग्जाम्पल. अच्छा एग्जाम्पल है, देखो आप मुझे उसका रिस्पॉन्स जरूर देना, आपको क्या समझा क्या नहीं, नहीं समझा तो भी डाउट पूछना. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास दो फोर व्हीलर्स हैं. एग्जाम्पल है बच्चों. एक मर्सिडीज है, एक रोल्स रॉयस. छोटी मोटी गाड़ियां मैं यूज नहीं करता हूँ बच्चों. और मैं जब A1 क्लासेस में लेक्चर लेने आता हूँ बच्चों, तो कभी मर्सिडीज में आता हूँ, कभी रोल्स रॉयस. ओके. हम देखते रहते हैं, बच्चे भी देखते रहते हैं, सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं. अब मुझे ये बताइए, एक दिन मैंने आप में से, मैं नाम ले रहा हूँ एक का किसी का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हितेन. ओके हितेन, मान लो हितेन माइनर नहीं है मेजर है, और मैंने हितेन से क्या कहा, विल यू परचेस माई कार, will you purchase my car for rupees 10 lakhs. बच्चों इस ऑफर में कोई मिस्टेक है क्या? ओ सैवियो का बहुत खतरनाक डाउट है. पार्क कहाँ करते हैं सर? सैवियो ने एकदम सीरियसली ले लिया मेरा लेक्चर. एनीवे